यो यतः बुद्धि प्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थ जीवानाम् अस्माकं सर्वदा सतः। स्वामिनी भावगौरस्य स्वस्वरूपं प्रपश्यतः कटाक्षैर्विठ्ठलेशस्य श्यामता चित्रितं वपु तस्मिन्नुभयभावेन तेषामुभयरूपतां स्पष्टं बोधयितुं गौरश्यामश्री विठ्ठलेश्वरः। सौन्दर्यं निजहृद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्रागीर्षत्स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्कृतयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायं विनाशापकिञ्चितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्ध्वन्निरिताक्षं मृगमतिलकं विठ्ठलेशं। आप सभी वैष्णवों को आज के या अध्ययन सत्र में स्वागत है। और अपन अब अध्ययन में आगे बढ़े। अपन ने 11 श्लोक कर लिए थे और वह विषय में कोई यदि कोई प्रश्न या शंका है तो अभी कर लें, तो को अपन समाधान करके फिर आगे बढ़े। तो यदि आपके कोई प्रश्न है अथवा मेरे को एक प्रश्न सवेरे कल ही आगे हुआ तो मैं आपको डिस्कस करूंगा। पर यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो वो आप लोग कर लें। आई होप कि आप लोग अपना होमवर्क करके आए हैं, क्योंकि ये ग्रंथ ऐसा है आप सब लोग अब तक जान ही गए हो। आधो ग्रंथ हो चुका है, तो कितना अपने को एकदम से स्विच ऑन स्विच ऑफ वाले अपन चीज नहीं है कि अपन तुरंत बाकी सब कुछ स्विच ऑफ करते हो सीधे ग्रंथ में घुस जाए। तो पहले थोड़ी सी अपनी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो आई होप कि आप लोग सब प्रिपेयर करके आए हो। हाँ, ओके, everyone is allowed to understand. Good. So, Ketkiven, would you like to ask the same question or should I? जी 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 पूछू। दंडवत प्रणाम जी जी। પ્રથમ દંડવત પ્રણામ जी जी। આશીર્વાદ છે, બોલો બોલો। પ્રશ્ન એમ હતો કે લાસ્ટ ક્લાસમાં આપ શ્રીએ સમજાવ્યું ત્યારે આજ્ઞા કરી હતી કે બ્રહ્મ સંબંધ પ્રાપ્ત કિયો જાય। હવે અજ્ઞાનાત અથવા અજ્ઞાનાત, જ્ઞાનથી અથવા અજ્ઞાનથી કોઈ જીવને બ્રહ્મ સંબંધ પ્રાપ્ત થયો હોય, પણ હવે એ જીવને તો ખબર નથી એ બ્રહ્મ સંબંધનું મહત્વ શું છે, કે પ્રભુએ મારું વરણ કર્યું છે અને એ સત્સંગનો અભાવ છે જીવને। આગળ ડાઉન ધ રોડ સંગ દોષના કારણે ઘણીવાર એ જીવ અન્યાશ્રયમાં પ્રેરિત થઈ જાય। એની નથી રુચિ રહેતી પ્રભુ શ્રવણ કીર્તન સ્મરણ ઇત્યાદિમાં રુચિ નથી રહેતી, કારણ કે આ આપણે જોયું કે ઠાકોરજીની કૃપા જે જીવ પર થાય, પ્રભુ જેને વરણ કરે તેને જ રુચિ થાય। બરાબર છે। તો પછી આવામાં અને પછી એ જીવ પ્રભુથી દૂર જ જતો જાય, અંતરાય વધતો જાય, તો એવા ટાઈમે શું કર્તવ્ય છે એ જીવનું, કે પછી એના આસપાસના એના સાથે જોડાયેલા જીવોનું, કે એને કેવી રીતે પ્રેરિત કરે, કે ડાયવર્ટ કરે પ્રભુ તરફ। અને સ્પેશિયલી જે જીવો દે ગેટ bewildered from the path। જો એના માટે છે ને એક સુરદાસજીની કથામાં પ્રસંગમાં આવે છે, એક બહુ સરસ પ્રસંગ આવે છે કે રોજ આપ સુરદાસજી દર્શન કરી નીચે ઉતરતા એક દુકાનમાં એક દુકાનદારની વાણિયા હતો,
એની દુકાનમાં આ જાય છે ને રોજ એને કહે છે કે ચલ તું હવે દર્શન કરવા. તો કે હા હા આટલું કરી દુકાન બંધ કરી પછી આવું છું, દુકાન વધાવીને આવું છું. પછી એક રોજ કામ એને આવતું જ રહે છે. અને પછી એ કહે છે કે મારા દીકરાના લગ્ન થાય એટલે આવું છું. ને આવી રીતે કઈ બહાના કાઢીને એ ના કરતો જ રહે છે. અને છેવટે એ કીડો થાય છે. એટલે કેટલાય એના જન્મ થાય છે ને કીડો થાય છે. અને પછી બહુ લાંબી કથા છે, આપ લોકો એ બધા વાંચી જશે તો. પણ છેવટે એ આવે છે. એટલે અહીંયા મારો કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે ભલે કેટલા પણ અંતરાય થયા હોય, પણ એ વાતની ગેરંટી છે કે આપણને પ્રભુ છોડવાના નથી. અને એ જીવને ભલે તમે એમ કહેશો કે એ કરાવનારા પણ પ્રભુ જ છે ને, એને અંતરાય કરાવનારા, એની પાસે આવી રીતના કર્યો કે જેથી એ દૂર થાય એ પણ કરાવનારા પ્રભુ જ છે. ઓફકોર્સ એ બધું કરનાર કરાવનાર તો પ્રભુ જ છે. અને એ આ પ્રભુની લીલા જ છે. છેવટે આપણે જયારે લીલાની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો there is nothing unfair. કે આ છેવટે તો લીલા જ છે ને. કોઈની સાથે આ જ વસ્તુ આપણે સમજવાની જરૂર છે આ માર્ગની અંદર, કે અહીં કોઈ બીજું નથી. કે જેમ કહેવાય કે વૈષમ્ય નિર્ઘૃણ્ય દોષ પ્રભુને નથી લાગતો આ બાબતમાં. કે કોઈની સાથે ફેવરિટિઝમ કરે છે કે કોઈની સાથે વધારે ક્રૂરતાથી વર્તે છે, એવું બધું કંઈ આપણે ઠાકોરજીની ઉપર આ દોષ ન લાગી શકે. કારણ કે છેવટે બધા પ્રભુના જ જીવો છે અને પ્રભુના જ અંગમાંથી પ્રકટ થયેલા છે. એટલે કોઈ પોતાની સાથે તો અનફેરનેસ તો કરે નહીં. એટલે એ વાતનું પણ એ જ છે કે there is nothing unfair in it. અને જે આવી રીતે ભટકી જાય છે એને આવા કોઈને કોઈ જીવ ભગવાન મેળવી જ આપે છે. જેવી રીતે સુરદાસજીને મેળવી આપ્યા, તો એમ સુરદાસજી મેળવી આપ્યા પેલા વાણિયાને, કે જે પાછળ લાગ્યા જ રહે છે. એટલે એ કરાવનારા પણ ઠાકોરજી જ છે, જે સુરદાસજી પાસેથી આવી રીતના કન્સિસ્ટન્ટલી એને યાદ દેવડાવનારા. એટલે આ બધી પણ પ્રેરણા પ્રભુએ જ એમને આપી છે. એટલે જ્યારે એવો કોઈ જીવ મળે તો નોટ બીકોઝ કે આપણે કરવાથી કંઈ થશે, પણ એવો કોઈ જીવ લાગે તો ઓફકોર્સ એને થોડોક આપણે સપોર્ટ આપવો જોઈએ અને એને પ્રેરિત કરતા રહેવું જોઈએ. પછી જેવી એની એટલે પ્રભુએ એનો જેટલો અંતરાય હશે એ તો પૂરું કરવું જ પડશે. અને પછી જેવો એનો એમ કહું કે પ્રભુની ઈચ્છા જેવી, તો એવી રીતના એ આવશે. પણ આપણા તરફથી આપણે એ પ્રયત્ન કરવો કે આવો જીવ ભટકે નહીં અને પ્રભુ સેવામાં પાછો આવે. એટલે એઝ અ વૈષ્ણવ દરેકનું કર્તવ્ય છે કે બીજો વૈષ્ણવ જો આવી રીતે ભટકતો હોય તો એવું દેખાય આપણને, તો આપણું કર્તવ્ય છે કે એને પ્રેરિત કરવું. પણ કેટલા હદ સુધી પ્રેરિત કરવું એ પણ એક પ્રશ્ન છે. પણ જેટલા એનો પણ ઉત્તર આપણને સુરદાસજીની આ કથામાં મળી જ આવે છે કે જો એ યોગ્ય જીવ છે તો પ્રભુ એને છોડવાના નથી. અને કોઈને કોઈ દ્વારા એવું નથી કે આ તો ઠીક છે કે સુરદાસજી એને મળ્યા અને છેવટે એટલે એ પછી આવ્યો પણ ખરો, પણ એવું જરૂરી નથી કે એક જ વ્યક્તિ એને મળે, અનેકો પણ મળી શકે છે. પ્રભુ કોઈ પણ રીતે એને પાછા બોલાવી જ લે છે. એટલે એને પોતાની પાસે જ રાખે છે. વન્સ એનું વરણ થયું એટલે અંતરાય ભલે પણ આવે પણ એને છોડવાના નથી. એ વસ્તુ તો ખાતરીપૂર્વક કહી શકાય છે કે આજ નહીં તો બીજા કોઈ જન્મમાં પણ પ્રભુ એને છોડવાના નથી. દેટ ઇઝ ફોર શ્યોર. એટલે જ્યારે એની રુચિ થઈ છે તો એનો મતલબ એ જ છે કે પ્રભુએ એને પસંદ કર્યું છે. બીજ છે. ભગવાન આચાર્યચરણો ભક્તિવર્ધિની ગ્રંથમાં આજ્ઞા કરે છે કે બીજમ તદુચ્યતે શાસ્ત્રે દૃઢમ યન નાપી નશ્યતિ. બીજ કોને કહેવાય? બીજ એને કહેવાય કે જે દૃઢ હોય અને એનું નાશ ન થાય ક્યારે પણ કોઈ પણ હાલતમાં
બીજ જે છે એ ભલે સુકાઈ ગયા છે પણ એનું નાશ નહીં થશે, એ એને બરાબર જે અનુકૂળ વાતાવરણ મળશે તો એ અવશ્ય અંકુરિત, પુષ્પિત અને ફલિત થશે જ. એમાં કોઈ શંકા નથી. ઓકે ચેતકીબેન? જી 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 જી. એટલે આમાં એવું છે કે ફ્રી વિલ આપવા વાળા પણ આપ જ છે, અને આપ જ પછી ક્યાં લગામ ખેંચવાની આપ જ ખેંચશે. જી જી. હા હા બિલકુલ. કારણ કે જે સ્ક્રિપ્ટમાં લખેલું છે એ તો થશે જ. એ કોઈ સ્ક્રિપ્ટ ને કોઈ ચેન્જ ન કરી શકે. એટલે જે સ્ક્રિપ્ટ, આ બધું સ્ક્રિપ્ટેડ છે, બધું જ સ્ક્રિપ્ટેડ છે. એટલે સ્ક્રિપ્ટ જે છે એ તો કોઈ ચેન્જ કરી શકે નહીં. જે થવાનું છે તે થવાનું જ છે. આ ફિલ્મ બની ગઈ છે, રિલીઝ થઈ ચૂકી છે, અને આપણે ખાલી એક શો જોઈ રહ્યા છીએ અત્યારે. એવા તો કેટલાય શો થઈ ગયા છે અને આગળ પણ થશે જ. અને ફિલ્મ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ ચેન્જ શો બાય શો. ફિલ્મ તો એ જ રહેવાની છે. એટલે આ વ્યક્તિ, આ જીવ જે છે એ શરણે આવેલો છે તો એ તો આવેલો જ રહેવાનો છે, અને એને પ્રભુ મળવાના જ છે અંતમાં જઈને. ભલે ગબ્બરસિંહ કેટલો પણ એ કરે, પણ છેવટે તો જેમ આપણે લાસ્ટ શો માં જોયું કે એ પોલીસ દ્વારા પકડાય જ છે, અને એ ખરાબ છે તો એ તો જાય જ છે જેલમાં. કેટલું પણ દેખાય, છેવટે તો એ થવાનું જ છે. એટલે ભલે એને અંતરાય આવ્યા પણ છેવટે તો જીવ જે છે એ આવશે જ પ્રભુના ચરણે. એ વાત છે. જી જી. તો હવે આપણે જઈએ, આઈ હોપ કે 11મા શ્લોકમાં कोई समस्या नहीं. आप लोगों को कोई समस्या तो नहीं है 11वें श्लोक में? जय जय श्री. हाँ पंचांग प्रणाम. जय जय श्री. રિલેટેડ જ બીજું એક મગજમાં કંઈક આવ્યું. એટલે જે આપણા સંબંધી કે આપણી આજુબાજુ રહેતા વૈષ્ણવી જીવો પણ હોય, જેનું બ્રહ્મ સંબંધ થયેલું છે, પ્રભુએ વરણ કર્યું છે, પણ આપણી જે એ લોકનામાં આસક્તિ રહે છે એને લીધે આપણે આ ચિંતા કરીએ છીએ એમને માટે કે આ જીવ નથી આવતું. હા, એ આપણું અજ્ઞાનતા છે. એ જ કે જે આપણે જેમ એમને કીધું ને કે આપણી આજુબાજુના જીવો આપણને લાગે કે વૈષ્ણવ છે, બ્રહ્મ સંબંધી છે, છતાં પણ ભટકી રહ્યા છે, કાં તો માર્ગથી દૂર થઈ રહ્યા છે. તો એવાની માટે આપણે ચિંતા કરવી એ આપણું અજ્ઞાન છે? અજ્ઞાન નથી, એ આપણું સ્નેહ છે. સ્નેહ છે, આસક્તિ છે આપણી. હા, આપણું સ્નેહ છે. એઝ અ વૈષ્ણવ આપણું સ્નેહ છે એની સાથે. હવે સુરદાસજીને શું હતું, એ વાણિયા સાથે કોઈ કનેક્શન નહોતું એમને, પણ એમને કેવલ જે લીલાનો સંબંધ જયારે હોય ત્યારે ભલે કેટલો પણ અજાણ્યો હોય, પણ એ લીલાના સંબંધથી એક કનેક્શન, એક ખેંચાણ અનુભવે છે. હવે જેમ તમે આપણી જ વાત લઈ લો કે વલ્લભકુલ અને વૈષ્ણવ, તમે પોતે અનુભવ્યું હશે કે જે વલ્લભકુલને તમે કોઈ વખત મળ્યા નથી જીવનમાં, એમને મળો ત્યારે તમને એવું લાગે છે કે આ પહેલી વાર મળ્યા છીએ કરીને? જોકે હું મારા તરફથી કહું છું કે અમને પણ કોઈ વૈષ્ણવોને મળીએ તો એવું નથી લાગતું કે પહેલી વખત મળી રહ્યા છીએ. એટલે એ ફિલિંગ આવે છે કે આપણી ઓળખાણ છે. એટલે એ વસ્તુ છે કે જે લીલાનો સંબંધ છે એ આપણને, ભલે આપણે ના જાણતા હોઈએ, પણ લીલાના સંબંધથી એક જાતનું ખેંચાણ, એક જાતનું જે અનુભવ કરીએ છીએ, બોન્ડિંગ, એ અલગ જ છે. એ બોન્ડિંગ ને લીધે આપણે એને એના માટે ફિકર કરીએ છીએ, ચિંતા કરીએ છીએ. પણ જે શ્રી, એટલે જ જો આ નિરોધમાં તો આવી આસક્તિ પણ બાધક બની શકે? નો, એ વસ્તુ અલગ છે. અચ્છા, વસ્તુ અલગ છે. એ બાધક એટલે અહીંયા તો જે ભગવત સંબંધી છે એ આપણા છે.
એટલે જે ભગવત સંબંધી જીવો પણ એ ભગવાનના જ અંશો છે, એટલે ભગવાનના જ, એટલે આસક્તિ તો આપણી એના સંબંધને લીધે જ છે, ભગવત સંબંધને લીધે. એ આસક્તિ એ આપણને પાછી કઈ સંસારમાં નથી નાખવાની એવી આસક્તિ. આ તો અલૌકિક આસક્તિ છે, એ લૌકિક આસક્તિ પ્રપંચની આસક્તિ નથી. હા, પણ જેજેશ્રી જેમ કીધું કે જે વૈષ્ણવ હોય આપણી આજુબાજુના જ હોય છતાં પણ એ સમજો કે અન્યાશ્રય કરતા હોય કે પછી માર્ગના સિદ્ધાંત પ્રમાણે નહીં ચાલતા હોય, તો પછી ભલે બ્રહ્મ સંબંધી હોય છતાં પણ એ જીવમાં આપણી જે ખેંચાણ રહેવું જોઈએ એ બાધક કરે. ધીસ ઇઝ વોટ આઈ. ના ના, એ ક્યારે પણ એ બાધક ન કરે. આપણી જે ખેંચાણ છે, આપણું જે સંબંધ છે, જેમ કીધું ને પેલા કે એ ભગવત સંબંધને કારણે છે, લીલા સંબંધને કારણે છે, પણ કોઈ પ્રાપંચિક સંબંધને કારણે નથી. ઓકે, એ કઈ બાધક નથી. હા, જય શ્રી. પ્રણામ જય શ્રી. હા, તો હવે આપણે આગળના એમાં વધીએ. कहाँ थे 11वें? तो ये निरुद्धा सेवात्र मोद मायांत्य हर्निशम, ये वस्तु, ये बात वहां पे कही गई थी कि अतएव नलकूबर मणिग्रीव वाभ्याम अनुग्रहानंतरमेव वाणी गुणानुकथन इत्यादि निरुक्तम च तथैव आत्मत् प्रभु चरणे भक्ति हंस. भक्ति हंस में भी यही बात कही है कि तदर्थित्व वर्ण कार्यत्वादिति, जो तदर्थी है वो ही उनको वर्ण को कारण है, जो उनको तदर्थित्व है यानी कि भगवदर्थित्व है, यानी भगवान से संबंधित नो जो है वो ही भगवान को वर्ण को, भगवान के द्वारा वर्ण को कार्य, यासु वो भगवान के द्वारा वर्ण हुआ है, वैसु वो संबंध है जो अभी जिगीषा बेन ने बात करी ना, वाक्य भी जवाब में मैंने यही बात कही है. ठीक है, वो तदर्थित्व होवे के कारण वो है ही. तो अब फिर कह रहे हैं कि न तेषाम क्षणमपि सांसारिक दुख संभव इत्युक्तम. तो ऐसे को क्षण भर के लिए भी सांसारिक दुख होना वो असंभव है. या में भी जिगीषा बेन के जवाब मिल जाए है कि उनको क्षण भर के लिए भी सांसारिक दुख असंभवित है, यानी ये जो भी दुख है वो असांसारिक अलौकिक दुख है कि अरे फलाना जीव जो है वो शरण में नहीं आ पाए, शरण में आके भी वो ऐसे भटक रहे है. ये जो दुख हो रहा है वो अलौकिक दुख है, वो सांसारिक दुख नहीं है, क्योंकि यहाँ कह दिया है कि न तेषाम क्षणम अपनी सांसारिक दुख संभव मद वार्ता यामानाम इति वाक्यात है याम मात्रम अपि एतद् वार्ताय परत्वे गृहादेर बंधकत्वम इति अहर्निशम तथा ते किम वक्तव्यम इत्यर्थ. ये जैसे कि वामे चतुर्थ स्कंद के अंदर को वाक्य है वह बताया कि थोड़े से एक प्रहर के लिए भी कोई भगवत ये संग कर ले, सत्संग कर ले, भगवत वार्ता कर ले, तो वाकु गृहादि बाधक नहीं करे हैं. तो जो दिन रात यहाँ में लगे रहे उनके लिए तो कहने हैं क्या, ये बात है. तो अब अपन चले हैं 12वें अध्याय के 12वें श्लोक के अंदर. तो क्या कह रहे हैं कि ननु गुणगानम निरोध साधकतया कर्तव्यम इति उक्तम तद इंद्रियाणां वैमुख्ये न संभवति इति तन निवर्तकम उपायम आहुः संसार वेश दुष्टानाम इति. शंका क्या उठाई गई है अगले श्लोक की उत्थानिका में कि भाई गुणगान के लिए निरोध साधक, ऐसा गुणगान के निरोध साधक के लिए, साधन के लिए गुणगान करना आवश्यक है, यानी निरोध की सिद्धि हो पाके लिए गुणगान करना आवश्यक है, ऐसा आपने कही.
तो परंतु इंद्रियां जो हैं जीव की, वो तो विमुखता है उनकी, वो तो हमेशा विमुख ही रहे हैं। तो विमुख इंद्रियन के चलते वो निरोध सिद्ध कैसे होगा? न सिद्ध न संभवती तद, यानी कि निरोध सिद्धि इंद्रियाणाम वैमुख्य न संभवती। इंद्रियन के विमुखता के चलते वो तो हो नहीं सके निरोध की सिद्धि। तो तन निवर्तकम उपाय, यानी किस बात को निवर्तन करना है? इंद्रियन की विमुखता को निवर्तन करने के लिए उपाय बता रहे। यदि इंद्रियां विमुख हैं तो उनकी विमुखता को निवर्तन करने को उपाय बता रहे। और वो क्या है? संसारावेश दुष्टानाम इंद्रियाणाम हिताय वै कृष्णस्य सर्ववस्तूनि भूम्नेशस्य योजयेत्। यदि इंद्रियां संसार के आवेश से दूषित हो गई हैं तो उनके हित के लिए कृष्ण में, यानी कि जो ईश्वर हैं, ऐसे कृष्ण में सब वस्तुओं को योजित करो। भूम्नेशस्य योजयेत्, यानी तो उनको, उन इंद्रियन को भगवान में जो सर्व समर्थ हैं उनमें योजित करो, यानी उनमें जोड़ो। ये बात यहाँ पे 12वें अध्याय 12वें श्लोक को अर्थ है कि अब आपको विवेचन देखें कि संसारस्य अहंता ममतात्मकस्य प्रपंचासक्ति संपादकस्य ये आवेश आसमन्ताद इंद्रियेषु प्रवेश तेन दुष्टानां भगवद वैमुख्य रूप दोष युक्तानां इंद्रियाणां चक्षुरादीनां हिताय भगवत परतया हितम कर्तुम सर्ववस्तूनि दारागार पुत्रादीनि कृष्णस्य सदानंदस्य योजयेत् युक्तम कुर्यात् इत्यर्थ। तो बड़ा वाक्य है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि संसार क्या है? काय को संसार क्या है? अहमता ममतात्मक है, ताकि संसार क्या है, यानी कि ये जो अपनी अहमता और ये जो अपनी ममता है, अहमता यानी ये देह जो है वो मैं हूं, ये अहमता है। और या देह से संबंधित जो भी पदार्थ हैं उनमें जो ये भाव है कि ये मेरो है, ये ममता है। तो ये अहमता और ये ममता, ये देह को अपनो समझनो ये अहमता, और देह संबंधी पदार्थन को अपने संबंधी समझनो ये ममता, ये संसार है। ये दोनों में जो अहमता ममता को जो भाव है वो संसार है। तो वो कैसे है? प्रपंचासक्ति संपादक है। ये जो संसार है, ये जो भाव है मेरो पने को और मेरो, ये मैं और मेरे पने को जो भाव है, ये क्या करे है? प्रपंच में आसक्ति संपादित करे, यानी जगत के अंदर आसक्ति करे है। तो ये प्रपंचासक्ति संपादक ये आवेश आसमन्तात् इंद्रियेषु प्रवेश है। यहाँ संसार शब्द को अपन ने अर्थ देख लियो, अब आवेश शब्द को अर्थ देख रहे हैं कि आवेश यानी क्या? आसमन्तात् इंद्रियादिषु प्रवेश, इंद्रियन में चारों तरफ से ये भाव प्रविष्ट हो जाए कि मैं और मेरो, ये जो संसार है या को आवेश आ जाए, यानी चारों तरफ से घेर लेवे है अपने इंद्रियन को। तो वाक्य का है इंद्रियां दुष्ट हो जाए, यानी दोष युक्त हो जाए। वो कौन सा दोष है? भगवद वैमुख्य रूप दोष, भगवान तू विमुखता होए को दोष हो जाए। क्योंकि अपन अपने देह को स्वयं को स्वरूप समझ रहे हैं और दैहिक संबंधी पदार्थन को अपनो मान रहे हैं, तो ये अपने को भगवान से विमुख कर रहे हैं, ये जो भाव है वो। क्योंकि अहम तो भाव वास्तव में क्या होना चाहिए कि अहम भगवतः दास, ये भाव होना चाहिए मैं भगवान को दास हूँ, ये भाव होना चाहिए, न कि मैं ये देह हूँ, ये होना चाहिए।
और भगवान मेरे शरण रूप हैं, मेरे शरण स्थल हैं, ये जो ममता को भाव है, ये नहीं हो के ये देह संबंधी पदार्थ जो है वो मेरे हैं ये मान लो, ये वको दोष है। स्वाभाविकतया वो तो अपन मतलब जीव के रूप में भगवान के अंश है और अपनो केवल एक ही शरण स्थल है, वो भगवत स्वरूप है। इन दोनों से विमुक्ता कर देवे है जब ये संसार को भाव अपने हृदय में आवे है, अहमता ममता को भाव अपने हृदय में आवे है, तो वो भगवत वैमुख्य रूप दोष युक्त जो इंद्रियां हैं, कौन सी इंद्रियां? चक्षु आदि नाम, यानी चक्षु नेत्र आदि, यानी जहाँ समय नेत्र कर्ण त्वक सभी इंद्रियां आ गई। इनके विषय को जो इनके जो विषय हैं वो सारे इनकी तरफ ही इंद्रियां दौड़े हैं, अपनी अपनी इंद्रियन के विषय की तरफ। तो इन इंद्रियन को हित करवे के लिए चक्षुरादि नाम हिताय, इन सबका हित करवे के लिए भगवत परतया हितम कर्तुम, यानी हित कैसे होगा इनको? जब ये भगवत पर होंगी, ये इंद्रियां जो हैं वो जब भगवत पर हो जाएंगी तो उनको हित होगा। तो हितम कर्तुम, तो वो कैसे किया जाए? आपका उपाय क्या? सर्व वस्तुनि, यानी कौन सी वस्तु? दार आगार पुत्र आदि कृष्ण से सदानंद से योजयेत युक्तम कुर्याद, यानी इन सभी वस्तुओं को, सब पदार्थ हमें दार आगार पुत्र, दार यानी स्पाउस, इंग्लिश में कहते हैं, पति के लिए पत्नी दार के रूप में है और पत्नी के लिए पति दार के रूप में है। तो दार आगार यानी घर, जहाँ पे तो मकान या घर जो भी जहाँ बंधे हुए हैं तो वो आगार, और पुत्र आदि यानी देह से संबंधी जो भी हैं, में पुत्र आदि में सभी आगे जो देह से संबंधी है वो। तो दार आगार पुत्र आदि में इन सबन को कृष्णस्य सदानंदस्य योजयेत, कृष्ण के लिए अथवा तो कृष्ण को सदानंद को योजित करें, यानी उनमें जोड़ें। युक्तम कुर्याद, योजयेत तो मतलब है युक्तम कुर्याद, उनको जोड़ो जाए, युक्त होनो यानी कि जुड़ना, दो वस्तु को जुड़नो ये योग कहलावे। तो यहाँ पे जो सारी इंद्रियां हैं उनको भगवान में जोड़ तो ये योग करना। तो कर्मादि नाम संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठेवति सप्तमी अर्थे षष्ठी, यहाँ पे जो विभक्ति यूज की गई है, उपयोग में आई गई है, वो है षष्ठी विभक्ति। कृष्णस्य भूम्न ईशस्य, ईशस्य ये कृष्णस्य, ये स्य जो आ रहा है ना, ये विभक्ति को, छठी विभक्ति को कृष्ण को, कृष्ण संबंधी ईश्वर संबंधी उनको बनाओ। यहाँ पे मतलब तो यहाँ पे सप्तमी को है, कृष्ण में जोड़ो, यूं कह रहे हैं, ये मतलब है, पर यहाँ पे वापरी गई है षष्ठी विभक्ति। नहीं तो यूं कहना चाहिए कृष्णे सर्व वस्तुनि भूम्ना ईशे योज ईश्वरे योजयेत, ऐसे कहना चाहिए। तो वो सप्तमी अर्थ तो यहाँ पे सप्तमी को ही है, पर कृष्णे कह देंगे तो वास्तु संबंध नहीं जुड़ेगा। अगर सप्तमी कहेंगे तो संबंध कब जुड़ेगा? जब संबंध बतावे वाली विभक्ति वापरेंगे तो संबंध तो समझ में आएगा। या तो कृष्णस्य शब्द यहाँ पे कृष्ण सु संबंधी बनाए, ये अर्थ बनेगा। पर यहाँ पे मतलब कहना सप्तमी है, पर वापरी गई है षष्ठी, यानी षष्ट्यर्थे सप्तमी है। यहाँ पे कृष्ण सु संबंधित बनाना चाहिए, यहाँ जोड़नो ये बताना है। या तो षष्ठी विभक्ति वापरी गई है पर अर्थ है सप्तमी में, यानी कि कृष्ण में जोड़े, यो कहना।
तो जब तक षष्ठी विभक्ति नहीं वापरेंगे तब तक वाकई ये अपने को संबंध कितना दृढ़ होना चाहिए ये पता नहीं चलेगा। या तो षष्ठी विभक्ति वापरी गई है, सप्तम्य अर्थ है षष्ठी है। तो अब शंका फिर उठ रही है कि ननु, ननु शब्द आया नहीं, शंका आई। ननु कृष्णे सर्व वस्तु समर्पणेन कथम इंद्रियाणाम दोष निवृत्ति इत्याशंक्य आहु। ये ननु से लेके इति यहां तक शंका है कि भाई कृष्ण में सर्व वस्तुओं को समर्पण कर देवे तो इंद्रियन के दोष की निवृत्ति कैसे हो जाएगी भाई। ये कोई शंका करे इसकी आशंका आहु, यानी अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ईशस्य, यहाँ पे ईश शब्द दिया गया है। भाई कृष्ण में सब वस्तुओं को जोड़ देवे तो इंद्रियन को दोष निवृत्ति कैसे होगी। तो कह रहे हैं कि भाई कृष्ण कृष्ण है और कृष्ण ईश्वर है, ईश है, ये ही सही समर्थ आदिदैविकताम अपि संपादयितुम सत्य इंद्रिय मात्र दोष निवर्तकत्वे किमाश्चर्यम इति भाव। यहाँ पे कृष्ण को कर रहे हैं और ईश्वर कह रहे हैं उनको, तो जिनको जिनमें ऐश्वर्य गुण है वो ईश्वर, और ऐश्वर्य गुण काय को कहवे कि जो सर्व समर्थ हो। ईश्वर कौन है, जो सर्व समर्थ है। भाई भगवान तो साधारण इंद्रियन को भी आदि दैविकता संपादन करवे में समर्थ है। तो जब अर्जुन को अपनो विश्वरूप दर्शन कराया भगवान ने, तब वासु कही कि तू इन आँखन से तो मेरे वास स्वरूप को देख नहीं पाएगा, कि तुम ये चक्षुन से तू मेरे को देख नहीं पाएगा, या तो मैं तेरे को अलौकिक चक्षु दे रही हूँ, वासु तू मेरे ऐश्वर्य को देख करके। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योगम ऐश्वरम। यानी कि भगवान ही नेत्रन को आदि दैविकता भी बना सके। तो जब भगवान आदि दैविकता संपादन भी कर सके हैं तो दोष निवर्तन करना तो वास्तु ज्यादा सरल बात है भगवान के लिए। तो वहां में क्या आश्चर्य है कि दोष को निवारण कर दे भगवान। जैसे वो सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में भी आज्ञा करी छेल्ले कि गंगात्वं सर्व दोषाणां गुण दोषादि वर्ण गंगात्वेन निरूप्य स्यात् तद्प्रापित। यानी गंगा जल में सामर्थ्य इतना है कि वाके अंदर कोई भी जल आके मिल जाए दूसरों तो वो वाकू गंगा ही बना देवे। गंगा सु मिलवे के पहले जल अलग अलग कहलाए जा सके हैं, और एक बार गंगा में मिल जावे के बाद फिर अगर एक अंजलि भर के कोई ले गो, बाकी पहले कहीं कोई दूसरी नदी सु या कोई नाला में सु पानी आके मिल रहा है, तो जब तक वो मिलो नहीं तब तक वो नाला है, नदी है, कोई दूसरा कुछ भी है। पर मिल जावे के बाद अगर एक चिल्लू भर तुम उठाओगे तो यूं नहीं कहोगे कि ये फलाने नाला का जल है, यूं ही कहोगे कि ये गंगा जल। तो यही सु यहाँ पे भी वही बात कह रहे हैं कि भगवान स्वयं यानी गंगा जल में भी इतना सामर्थ्य है तो भगवान में कितना होना चाहिए। तो वो तो आदि दैविकता संपादन करवे में समर्थ है ही, तो इंद्रियन के दोष मात्र को निवर्तन कर देना उनके लिए का बड़ी बात है। यासु कृष्ण को साधारण मत समझो, वो ईश्वर हैं, उनको सब तरह को सामर्थ्य है। यासु हमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सब दोषन की निवृत्ति हो जाएगी भगवान को समर्पण कर लेती। या फिर दूसरे एक और एंगल बता रहे हैं, यद्वा इंद्रियाणि स्वतो विमुखान्येव परांति खानी व्यतृणत स्वयंभूर इति श्रुते है। ये कठोपनिषद की श्रुति है। कठोपनिषद की श्रुति है ये। वहां में ऐसे कहे हैं कि परांच खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीर प्रत्यगात्मानमैक्षद आवृत्त चक्षुर अमृतत्वमिच्छन्। यानी अपने शरीर की जो इंद्रियां हैं वो कौन ने बनाई है, स्वयंभू यानी कि ब्रह्मा जी ने बनाई है। तो ब्रह्मा जी ने इन इंद्रियों को कैसी बनाई है, आउटवर्डली,
बाहर की तरफ ही देखे हैं, बाहर की वस्तु को ही अनुभव करें हैं, अपने अंदर की वस्तु को अनुभव नहीं कर सके। परांच की खानी, जैसे मतलब खानी यानी इंद्रियां, परांच की यानी बाहर की ओर देखती हुई, बाहर की ओर उन्मुख इंद्रियां बनाई गई हैं। कौन के द्वारा? स्वयंभू के द्वारा। तो तस्मात् परांग पश्यति, या तो इंद्रियां अपने बाहर की वस्तु को देखें हैं, उनको अनुभव करें, न अंतरात्मा। अंतरात्मा में देखने के लिए आंखन को बंद करना पड़े और ध्यान करना पड़े, तब जाके भीतर अंतरात्मा उसको देख सके है। यासु ये जो है इंद्रियां, वो स्वाभाविक रूप से ही बाहर की ओर ही होंगे है। यासु कश्चित धीर प्रत्येगात्मान ऐक्षत तावत का चक्षुर अमृतत्व में इच्छन। कोई ऐसा धीर मनुष्य होवे है कि जो प्रत्येगात्मा को देखने के लिए जिनकी इच्छा हो, वो इन इंद्रियन के पर जाके वो अपने भीतर झांक के देखे है और अमरता को प्राप्त हुए है, दैवत्व संपादित हुए है उसके अंदर। तो यहाँ पे भी वही बात कह रहे हैं कि क्योंकि इंद्रियां स्वतः विमुख ही हैं, या कारण तो तेषां हिताय कृष्णस्य भगवतः संबंधीनि सर्ववस्तूनि लीला सृष्टिस्थानी भावनया इंद्रियैः सह योजयेत् इत्यर्थः। यानी उनको, उन इंद्रियन को उनको हित करवे के लिए कृष्णस्य भगवतः संबंधी, भगवान से संबंधित सब वस्तुओं को, यानी लीला सृष्टि में जो सब वस्तुएं हैं उनकी भावना करते हुए इंद्रियन को वहां योजित करना भगवान है। लीला सृष्टि के स्थान को भावना करते हुए उनको इन इंद्रियन को भगवान में योजित करना चाहिए, भगवत सेवा में उनको योजित करने चाहिए। एतदेव अक्षण्वताम इत्यस्य विवरणे भगवता सह संलाप इत्यादिना निरूपितम इति ततएव भावनीय। अब यहाँ पे श्री हरराय जी निरोध लक्षण अपने वेणु गीत के प्रारंभ को जो श्लोक है, अक्षण्वताम फलम इदम न परम विदाम, या के ऊपर आचार्य चरण की कारिकाएं हैं, उन कारिकाओं को रेफरेंस दे रहे हैं कि वहां पे भगवान ने अपने आचार्य चरण में ये बात वहां पे कही है कि, देखो आपको बताऊं, भगवता सह संलापो दर्शनम मिलितस्य च आश्लेष सेवनम वापि स्पर्शश्चापि तथाविध अधरामृत पानम च भोगो रोमोद्गमस्तथा तत्पूर्जितानां श्रवणं घ्राणं चापि सर्वतः तदंतिका गतिर्नित्यम एव तद्भावनम सदा इदमेव इंद्रियवतां फलम मोक्षोपि नान्यथा यथा अंधकारे नियता स्थिते क्षणो फलम भवति भवेत् एवं मोक्षेपि इंद्रियादि युक्तानां सर्वथा न हि बाधकानां परित्यागे साधकानां न तद भवेत्। ये कारिकाएं वहां पे अक्षण्वताम फलम इदम न परम विदाम, ये श्लोक के पहले की कारिकाएं हैं, एक श्लोक के ऊपर की कारिकाएं हैं। तो यहाँ पे यह आज्ञा कर रहे हैं कि नेत्र अथवा इंद्रिय धारियों का वो स्वरूप ही फल है, क्योंकि यानी वो स्वरूप यानी कौन सा स्वरूप है? ये भगवान को जो स्वरूप है, वो भगवान को जो विग्रह है, ये अलौकिक स्वरूप जो है, वो भी इंद्रिय धारियों के लिए फल है, क्योंकि इस स्वरूप से वार्तालाप, दर्शन, आश्लेष यानी आलिंगन, सेवा, स्पर्श, अधरामृत का पान, भोग, पुलकता, रोम का मतलब गूसबम्स होना, वो तो भगवान के किए हुए पूजन का श्रवण, श्री अंग की सुगंधी, नित्य प्रभु के निकट जाना, सदा इस प्रकार को की भावना आदि होती है। अतः ये स्वरूप ही इंद्रिय धारियों का मोक्ष फल है। अन्य प्रकार का जो मोक्ष है वो फल नहीं है।
जिस प्रकार अंधकार में स्थिति नेत्रों का फल नहीं है, अर्थात नेत्रों का होना सफल तब होता है जब प्रकाश हो, जिससे सर्व प्रकार की कृति को कृति की जा सके, अन्यथा अंधकार होना नेत्रों की निष्फलता है। और कोई तुमको नेत्र दे दे पर तुमको एक अंधे कमरा में बंद कर दे, तो नेत्रों की कोई फल है? तो ये मोक्ष मिलना, मोक्ष में की स्थिति वैसी ही है कि जहां कोई अनुभव ही नहीं, आनंद को तुमको, आनंद में तुम जाके मिल गए पर वह आनंद को तुमको अनुभव नहीं है। आनंद के लिए ही झंखना करते रहे पूरे जीवन भर, पर जब आनंद प्राप्त भयो तब वो आनंद को भोगवे के लिए इंद्रियां ही है। क्योंकि आनंद या सुख कहाँ से भोगे जा सके है, जब इंद्रियां होवे तो सुख भोगे जा सके है। पर होवे क्या है कि इंद्रियां प्राप्त होवे के बाद में, क्योंकि अपन जगत में है, प्रपंच में है, तो इंद्रियां अपन की प्रपंचिक पदार्थ में वो सुख को ढूंढे और वो वहां में जो सुख मिले वही को समझ बैठे कि हाँ यही सुख है। पर वो सुख तो है ही नहीं, वो इंद्रिया वाके लिए नहीं है। फिर वो जब मालूम पड़े कि ये सुख नहीं है तो फिर शाश्वत सुख की लालसा होवे, और जब शाश्वत सुख की लालसा में फिर वो ज्ञान मार्ग आदि साधन अपनावे और कर्म मार्ग आदि साधन, उपासना मार्ग आदि साधन अपनावे, और वह सबके फल रूप जब मोक्ष की प्राप्ति होवे तब आनंद मिले और वो आनंद भोगवे लायक। पर जब वो आनंद भोगवे लायक मिलो तो भोगवे के लिए इंद्रियां ही नहीं रही। तो या तो इंद्रियां ही नहीं रहेंगी और आनंद मिलेगा, या आनंद नहीं मिलेगा और इंद्रियां मिलेंगी। तो ये दोनों चीजें एक मिले तो दूसरों नहीं, दूसरे मिले तो पहले नहीं। तो ये सब के कारण कोई इंद्रियन के होवे को कोई फल ही प्राप्त नहीं भयो। तो यहाँ पे जो गोपियां या श्लोक के अंदर कह रही हैं कि अक्षण्वताम फलमिदम न परम विदाम, सख्य पशु, ये के गोपीजन कह रहे हैं कि हे सखियों, वेणुनाद करते हुए तथा बंसी बजाते हुए एवं स्नेह भरे कटाक्ष चलाते हुए मित्रों के द्वारा पशुओं को वन में ले जाने वाले ब्रजराज जी के पुत्रों के मुख का सेवन तथा पान ही इंद्रिय वाले अथवा नेत्र वालों का फल है। क्योंकि अब वो आनंद जो है, जो मोक्ष में जो सुख मिले है, आनंद की प्राप्ति हो गए है, वो आनंद अब स्वयं आकार साकार स्वरूप में अपने सामने विराजे। अपनी इंद्रियां भी हैं और वो स्वरूप भी है। तो इन इंद्रियों को या स्वरूप को भोगो, या स्वरूप को अनुभव करो, या स्वरूप के दर्शन करो, या स्वरूप को स्पर्श करो, या स्वरूप के जो है वेणुनाद को सुनो। ये और ये सब सुख इन इंद्रियां जो प्राप्त भई गई, अपन को यूं तो इंद्रियां ही नहीं मिले, और ये जो मिली है वो भी ये जो मनुष्य देह वामे, ये जो समझ के साथ में ये जो अपने को मिलियो है वाको लाभ लो, यही अक्षण बताम फलम इदम न परम विदाम। तो ये यासु परम फल और कोई है ही नहीं अक्षण ये इंद्रियन के लिए। तो ये बात के लिए ही यहाँ पे कारिकाएं क्या कह रही, कैसे भगवान के स्वरूप को आनंद लेना। तो कह रहे हैं कि भगवता सह संलापो दर्शनम मिलितस्य च, यानी भगवान के संग वार्तालाप, ये अपने जिह्वा को, वाणी को जो फल है, वाणी प्राप्त हुई है तो वह वाणी के, वाणी को सुख कैसे प्राप्त करनो, वहां में आनंद कैसे प्राप्त करनो, भगवान के साथ संलाप वार्तालाप हो अपनो, वो संलाप है। दर्शनम मिलित, और जो भगवान मिले हैं उनके दर्शन करो, ये नेत्रन को सुख है, ये नेत्रन के लिए आनंद है। आश्लेष सेवनम चापी, आश्लेष भगवान को आलिंगन करो, ये अपने देह या त्वचा के द्वारा वो आलिंगन में जो स्पर्श को अनुभव हुए है तो वो प्राप्त करो। स्पर्शश्चापी तथा विधर वासु, वो स्पर्श वह प्रकार को स्पर्श को प्राप्त करो। अधरामृत पानम च भोगो रोमोद्गम, अधरामृत पान ये ही भोग है, और रोमोद्गम ये जो पुलक होनो, ये
जो अपनी जो उपस्थ और पायु इंद्रिय है वो अपन वाकु है समझे हैं, पर उनके कारण ही ये जो रोमोद्गम जो हो गए ना वो वाक्य कारण हो गए। वो रोमोद्गम तो अपने आप पायु उपस्थ इंद्रिय जो हैं उनको भी उपयोग भगवत स्वरूप के प्राप्ति के वक्त में जो रोमोद्गम होए पुलक होवे है, जो गूसबम्स होवे हैं, वो ही कौन के कारण, ये भगवत स्वरूप की प्राप्ति से जो रोमोद्गम होवे, जो पुलक होवे, जो गूसबम्स हो अपने को, वो अनुभव करो, वो करवे लायक है। तत्पूजितानाम श्रवण माघ्राणम चापि सर्वतः। भगवान जो पूजित कर रहे हैं, जो वेणु पूजित कर रहे हैं, वहाँ को श्रवण करो, ये नेत्र इंद्रिय को फल है। आघ्राण चापि सर्वतः, भगवान को जो माला की सुगंधी को आघ्राण करो, को सुगंध लो, वो तदंतिक गति नित्यमेव तद्भावनम सदा, यानी तदंतिक गति भगवान की तरफ ही गति। गति कहाँ से मिले अपने को, चरण के पैर के द्वारा अपन गति प्राप्त करें, तो वो पैरन की गति भगवान के समीप जावे में को उपयोग होगा। ये अपने को ये पैर की जो इंद्रियां मिली हैं वो अपने को वाक्य लिए है। तदंतिक गति नित्यमेव तद्भावनम सदा, इदमेव इंद्रियवताम फलम मोक्षोपि न अन्यथा। ये इंद्रियन के प्राप्ति को फल है, मोक्ष भी नहीं है, क्योंकि मोक्ष में तो इंद्रियां ही नहीं है। इंद्रियां ही नहीं है तो फिर भगवान को, मतलब जब इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है तो फिर तुम वहाँ को मजा कैसे लोगे, वहाँ को आनंद कैसे लोगे। यथा अंधकारे नेता स्थितिर नाक्षणो फलम भवेत, जैसे तुमको आंख दे दी और तुमको अंधकार में ले जाके खड़ो कर दियो तो इंद्रिय प्राप्त, मतलब ये आंख प्राप्त होवे को कोई फल ही नहीं है, तो वास्तव तो अंधे ही सही, ठीक है ना। एवं मोक्षोपि इंद्रिय आदि युक्ता नाम सर्वथा न ही, यानी इंद्रिय युक्त के लिए मोक्ष को भी कोई उपयोग नहीं है। बाधका नाम परित्यागे साधका नाम न तद भवेत, यानी यही प्रकार से इंद्रिय धारियन के ये तो यहाँ पे तो जो बाधक है इंद्रिय वालों के लिए मोक्ष नहीं है, बाधकन को परित्याग करनो, और या तो वो मोक्ष फल नहीं है। बाधका नाम परित्याग साधका नाम न तद भवेत, जो साधक है जो भगवान की साधना कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति की साधना कर रहे हैं, उनके लिए वो सुख नहीं है जो मोक्ष में है, वो सुख हमको नहीं चाहिए, ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो अब अपन यहाँ पे वही बात कह रहे हैं कि तो एतदेव अक्षण्वताम इत्यस्य विवरणे भगवता सह संलापो दर्शन मिलितस्य च इत्यादि में कहा गया है। एवं असत एवं विभावन, यानी वहां से समझ लियो अपन। ननु, अब वापिस यहाँ पे शंका आई कि ननु ईशत्वेपि सर्वेन्द्रियादिषु संबंधा भावे कथम दोष निवर्तकत्वम इत्याशंका भूमना इति। ओके, ठीक है, आप कह रहे हो कि भगवान ईश्वर हैं और सर्व समर्थ हैं, तो भी सर्वत्र इंद्रियादिषु संबंधा भावे कथम दोष निवर्तकत्वम, यानी सर्वत्र इंद्रियन को संबंध को अभाव हो जाए तो दोष निवर्तकता कैसे होगी। तो वहां के लिए कह रहे हैं कि भूमना इति, भूमा सर्वव्यापको अतो ये यथा भावयिष्यन्ति तत्र तथा प्रकटीभूय संबंधो भविष्यति, यानी इंद्रियादि का संबंध तो सब तरफ है, सर्वत्र छाया भय, तो एक जगह थोड़ी है, तो भगवान योजित करना कैसे आपके लिए संभव हो। तो वो कह रहे हैं कि भगवान ईश्वर हैं, वो भूमा है, भूमा होनो यानी कि सर्वव्यापक होना, भगवान सर्वव्यापक है। जब जहाँ पे भावना करेंगे वहां वो प्रकट होके संबंध अपना स्थापित कर लेंगे। भगवान तो सर्वव्यापी है, आकाश की तरह सब जगह
उपस्थित हैं, तो जहाँ पे भी भावना की जाएगी भगवान की उपस्थिति की, वहां अवश्य भगवान प्रकट होके संबद्ध हो ही जाएंगे। तो यहाँ पे भूमना शब्द दिया है, यहाँ पे भूमा शब्द को अर्थ व्यापकता को लिया गया है। यहाँ पे दूसरो भी अर्थ है भूमा को, पर पहलो अर्थ व्यापकता को लिया है। वाक्य हिसाब से समझा रहे हैं कि भगवान सर्वव्यापक होने के कारण जहाँ पे भावना करी जाएगी वहां पे आप प्रकट होके संबद्ध हो जाएंगे। जैसे वो रामदास जी के वो जलेबी आरोगी, और वो कौन से वैष्णव जिनने एक दिन पहले वसंत पंचमी को उत्सव कर लियो, तो वहां पे भी प्रकट हो गए। जहाँ भावना करी, जहाँ भाव तू भगवान को उनको स्मरण किए, वहां पर प्रभु प्रकट हो के वहां पे वो वस्तु को स्वीकार कर रहे हैं। तो भगवान तो भूमा है या सु, भगवान के लिए सब संभव है। जब जहाँ जैसे भी जो भी समर्पित किया जाएगा, वो भगवान तद गोपिकेश स्ववदने कमले चारुहा से करोती, ये बात गोसाई जी ने कही है। तो भगवान तो वहां पे प्रकट हो के और संबद्ध हो ही जाएंगे, जहाँ पे भी भगवान को स्मरण किया जाएगा वहां पे। तो ये एक अर्थ हुआ। फिर यद्वा भूमना इति तादर्थे चतुर्थी, यहाँ पे भूमना तादर्थ चतुर्थी में चतुर्थी विभक्ति लेके दूसरो एक अर्थ बता रहे हैं कि वाह अर्थ के हिसाब से। अब यहाँ पे थोड़ा सा विषय अनुभाष्य को आ रहे है, जैसे अपन आज को यहीं पे रख के और यह विषय को अपन अगले सप्ताह लें तो ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा विस्तार है यहाँ पे, और थोड़ा सा अनुभाष्य को भी अपने को देखना पड़ेगा। तो वो देखेंगे तो अपने को अच्छी तरह से समझ में आएगा। बहुत सुंदर या के ऊपर आचार्य चरण की भाष्य है। भूमना कृतुवत जायस्तम तथा ही दर्शयति, ये तीसरे अध्याय को तीसरे पाद और वह में 19वां अधिकरण है और 57वां सूत्र है। तो वह वाक्य हिसाब से अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो वह के लिए अपन अगले शनिवार रखें, तब अपन ये देखेंगे। तो आज अपन यहाँ पे विराम ले रहे हैं। तो आप लोगों की यदि कोई प्रश्न आती है तो वो आप लोग अब कर सको, शंका हो तो। तो फिर अपन आश्रय को पढ़ लेंगे। तो एनी क्वेश्चन? विपुल समझ में आया? हाँ समझ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। हाँ, कोई शंका तो नहीं? हाँ, એટલે અહીં જે ઇન્દ્રિયોને સુખ જે અવતાર કાળમાં ગોપીઓએ પ્રભુના સાક્ષાત સ્પર્શ શ્રવણ વગેરેથી જે કર્યું એ જ અનવતાર કાળમાં સેવામાં પ્રભુને જોડે જોડાવાથી એ સુખ પ્રાપ્ત કરવાનું. હા, એ જ સુખ પ્રાપ્ત, એ જ છે મૂળ હેતુ જ સેવાનો એ જ છે કે ભગવતા સહ સંલાપો દર્શનમ મિલિત ઇત્યાદि, એ મૂળ હેતુ જ એ છે સેવા દ્વારા એ પ્રાપ્ત કરવાનું, કે જે 84-252 વૈષ્ણવોએ કરેલું જ છે. સાક્ષાત આપની સાથે ભગવાન સંલાપ કરતા, વાર્તાલાપ કરતા અને સાનુભાવતા જતાવતા, એ બધું જ જે ગોપીજનો સાથે કર્યું એ આ સમયમાં પણ ભગવાન કરે છે કૃપા કરીને. એટલે જે શ્રી એમ તેમને શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણે જીવોને અંગીકાર કરીને એ અલૌકિકતાનું દાન કર્યું, જેનાથી હા
અને જે આ જેના માટે દેહની પ્રાપ્તિ છે, જે ઇન્દ્રિયાદિની પ્રાપ્તિ છે, જે એની સાર્થકતા માટે ભગવાન આચાર્ય ચરણો અને ગુસાઈજીએ એ પ્રાપ્ત કરાવ્યું છે. અને એ અત્યારના ઇન્દ્રિયોની પ્રાપ્તિ. કલયુગના આજે 550 વર્ષ પછીના જે અત્યારના જીવો છે એને પણ બ્રહ્મ સંબંધ આપીને શ્રી આચાર્યજી એ જ સુખ આપવા માટે આપવા માંગે છે. એટલે હા, એ જ આપવા માટે. દુર્ભાગ્ય જીવોનું છે કે જે સમજી નથી શકતા ને ઇફ આઈ એમ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઇટ રાઈટ. રાઈટ, એક્ઝેક્ટલી, એકદમ ટુ ધ પોઈન્ટ તમે સમજ્યા છો કે દુર્ભાગ્ય જીવોનું છે કે જે સુખ, જે ઇન્દ્રિયો આદિનું સુખ જે છે એ આપવાનું, એ જેના માટે આ બધું છે એ છોડીને આપણે સંસારની વસ્તુઓની તરફ દોડીએ છીએ કે જ્યાં સુખ છે જ નહીં. એ તો પૂરું થઈ જવાનું છે, આરંભ અંત વાળું છે. પણ ભગવત સંબંધી સુખ, ભગવત સંબંધી જે આનંદ છે એ મુખ્ય હેતુ છે ઇન્દ્રિયોની પ્રાપ્તિનો અને દેહની પ્રાપ્તિનો, કે જે આપણને આપવા માંગે છે આચાર્ય ચરણો. હાજી જયશ્રી, આભાર જયશ્રી. જે તો આપણે જે આપણે દેહ આ જન્મમાં પ્રાપ્ત થયો છે અને જે વ્રજની લીલા છે તે આપણે અહીંયા ભૂતલ પર સેવા કરીને એ લીલાનો અનુભવ અહીંયા કરીએ છીએ. તો પછી આપણો આ દેહ અલૌકિક થઈ ગયો કેવાય? તનુના વસ્તુ જે શ્રી યમુનાજીની કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય છે એ તનુ નવત્વ, અને પછી દેહ છોડ્યા પછી નવતનુત્વ, બંનેનો ભેદ સમજ્યા ને તમે? આ દેહમાં એ સુખનો અનુભવ કરવું એ તનુ નવત્વ, અને જયારે લીલામાં પ્રાપ્તિ થાય ત્યારે નવતનુત્વ. જી 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 સમજી જી એ વસ્તુ છે. ઓકે, પછી આપણે રાખીએ અહીંયા. કે પછી બીજું કંઈક કેવું હોય, જરૂર નથી કે પ્રશ્ન જ હોય, તમે કંઈક કેવું માંગતા હોય તો પણ તમે કહી શકો છો. સમથિંગ ટુ એડ? ચાલો, તો પછી આપણે રાખીએ અને આશ્રયનો પદ લઈએ આપણે. તો નેક્સ્ટ ટાઈમ હું ઈચ્છીશ કે તમે જે અનુભાષ્ય જો મળી શકે કોઈને, અવેલેબલ હોય તો પ્રાપ્ત કરી શકો તો અધ્યાય 3 પાદ 3 19મું અધિકરણ અને એમાં સૂત્ર 57 એ મળી શકે તો એ તો હું અહીંયા તો તમારી સામે બતાવવાનો જ છું, પણ જો તમને મળે તો એ સામે રાખજો અથવા તો વાંચીને આવજો. તો હવે આશ્રયનું પદ લઈએ આપણે. ચરણાની કેરો ભરોસો, ચરણાની કે શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિન સબદુજ માঝ અંધેરો ભરોસો, ચરણાની કે साधन और नहीं या कली में जातो हो निरे, सूर कहाँ कहे दिव्याधरो, बिना मूल को चेरो करो, चरण के. तो अब अपन अगले सप्ताह मिलेंगे. तब तक के विजय श्री प्रभु. પ્રણામ જય જય. આપના ચરણોમાં કોટાનું કોટી સાષ્ટાંગ દંડ પ્રણામ. આશીર્વાદ ભાઈ.